کہ ڈی جی خان کے حلقہ 289 میں ضمنی انتخاب 10 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ سابق نگران وزیر اعلیٰ سردار دوست محمد کھوسہ نے کاغذات جمع کروائے۔ سردار دوست محمد کے صاحبزادے سردار محمد اسامہ کھوسہ بھی فہرست میں شامل۔ سینیٹر حافظ عبدالکریم کے صاحبزادے اسامہ اور انس کے کاغذات بھی جمع۔ عزادار حسین، محمد عباد خان نام بھی شامل۔ سید عبدالعلیم، افتخار احمد اور ظفر بشیر بھی امیدواروں کی فہرست میں شامل ہیں۔ ناظرین، ملتان میں ٹرانسپورٹرز کے خلاف انتظامیہ کی کارروائیاں۔ متعدد ٹرانسپورٹرز سمیت چیئرمین ملتان مظفر گڑھ کنٹینرز ایسوسی ایشن ملک اجمل پہوڑ گرفتار۔ تفصیلات کے لیے وسیم شہزاد کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پانچویں روز بھی حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات تاحال ناکام رہے۔ 5 روز سے ہڑتالی کیمپ میں بیٹھے ٹرانسپورٹرز نے ٹرانسپورٹ کا پہیہ نہ چلنے دیا، جس سے صوبہ بھر میں گڈز ٹرانسپورٹ کی بندش سے شہری شدید پریشان ہو گئے۔ ٹریفک کی روانی میں مسائل پیدا ہونے سے انتظامیہ نے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا، جس پر متعدد ٹرانسپورٹرز رہنما کار سرکار میں مداخلت پر گرفتار ہو گئے۔ ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ اگر ہمارے ٹرانسپورٹروں کو انہیں اسی طریقے سے گرفتار کرنا شروع کیا تو چاروں صوبوں کے اندر مکمل طور پر اس سے بھی زیادہ شدت سے ہڑتال شروع ہو جائے گی، کیونکہ اب تاجر بھی ہمارے ساتھ ہیں، چیمبر آف کامرس بھی ہمارے ساتھ ہیں، ٹیکسٹائل زون کے تمام لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق احتجاج میں شامل افراد نے ٹریفک کی روانی کو بری طرح متاثر کیا۔ چیئرمین ملتان مظفر گڑھ کنٹینرز ایسوسی ایشن ملک اجمل پہوڑ سمیت متعدد ٹرانسپورٹرز کی گرفتاری پر ٹرانسپورٹرز نے بہاولپور بائی پاس چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت فی الفور ٹرانسپورٹرز رہنماؤں کو رہا کرے۔ گرفتار تو وہ تب کریں گے جب ہم کو خدا نخواستہ ویلیشن کریں گے۔ قانون کی ہم پاسداری کرنے والے لوگ ہیں، ہم قانون کے مطابق چل رہے ہیں، ہم اپنا صرف کاروبار بند کیا ہوا ہے۔ ہمارا آپ دیکھیں روڈ پہ کوئی ہمارا احتجاج نہیں ہے، ہم نے کہیں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی ہوئی، ہم تو الٹا گورنمنٹ کو ریلیف دیتے ہیں اور گورنمنٹ کے ہم جو ہے ان کے ساتھ یعنی کہ ہم کو چولی دامن کا ہمارا ساتھ ہے، گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہم نے چلنا ہے، لیکن گورنمنٹ ہمارے تحفظات سنے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ حکومت مطالبات کی منظوری کی طرف قدم بڑھائے اور وہیکل ایکٹ 2025 کو واپس لے، وگرنہ ہڑتال میں مزید شدت لائیں گے۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ بہاولپور میں آل پاکستان مزدا اور گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال۔ ٹرانسپورٹرز کا KLP روڈ پر ٹرک مارچ، ٹرکوں پر احتجاجی بینرز بھی آویزاں کیے گئے تھے۔ تفصیلات طاہر جودیانہ کی اس رپورٹ میں۔ آل پاکستان مزدا اور گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن بہاولپور کی جانب سے ہڑتال۔ ٹرانسپورٹرز نے KLP روڈ پر مطالبات کی منظوری کے لیے ٹرک مارچ کیا۔ مارچ میں درجنوں گاڑیوں نے شرکت۔ شریک ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ ان کے مطالبات پر ہمدردانہ غور کریں۔ رات کو ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں، وزیر موصوف سے 4 وزیر تھے، لیکن انہوں نے ابھی تک ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں دیا۔ CM صاحبہ، آپ کے پہلے بھی ہمارے اوپر بہت احسان ہے غریب عوام پہ، تھوڑی سی ہمیں ریلیکس دیں آپ، کیونکہ 279 کا پرچہ وہ اگر ڈاکومنٹس پورے ہیں تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹرک مارچ کو ٹرانسپورٹرز کے مقامی عہدیداران سمیت چیئرمین مزدا ایسوسی ایشن جنوبی پنجاب چودھری ساجد لیڈ کیا۔ مارچ میں شامل ٹرکوں پر احتجاجی بینرز بھی آویزاں کیے گئے تھے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ پرامن مارچ کا مقصد حکومت کو نئے قانون کے تحت بھاری جرمانوں اور سزاؤں پر نظر ثانی کرنے پر آمادہ کرنا ہے۔ مطالبات کی منظوری تک صرف پرامن احتجاج کریں گے۔ ہماری یہی ریکویسٹ ہے حکومت وقت سے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو چلان ہو، یہ نا ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم پہ بالکل آپ چلان بند کر دیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس پہ ذرا نظر ثانی کی جائے۔ جو CM صاحبہ نے اپنا چلان اور FIR ڈرائیور پر دینی شروع کی ہے، اس کو فی الفور واپس لیا جائے۔ ایک گاڑی سے کتنے خاندانوں کا جو ہے وہ پہیہ چلتا ہے، آپ اس چیز کو خود دیکھ لیں۔ صرف یہ ٹرانسپورٹر کا نقصان نہیں ہے، گورنمنٹ کا بھی نقصان ہے، ٹول پلازوں کی مد میں، چلانوں کی مد میں۔ دوسری طرف ہڑتال کے 5ویں روز ملتان میں ٹرانسپورٹرز کی پکڑ دھکڑ کے بعد بہاولپور میں بھی 3 مقامات پر قائم احتجاجی کیمپ سے ٹرانسپورٹرز غائب ہو گئے۔ ٹرانسپورٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس ڈرا دھمکا کر ہڑتال ختم کرانے کی کوشش کر رہی ہے، تاہم مرکزی قیادت کے اعلان تک ہڑتال جاری رہے گی۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جودیانہ، روہی، بہاولپور۔ بہاولپور کی منڈی میں سبزیوں کی آمد سے کاروبار جزوی طور پر بحال۔ مارکیٹ کمیٹی کے مطابق سپلائی متاثر ہونے کے باوجود سبزی اور پھلوں کی قیمتیں مستحکم ہیں۔ بہاولپور میں ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا سلسلہ بدستور جاری۔ پھل اور سبزی منڈی میں ہڑتال کے باوجود سبزیوں کی آمد جاری ہے۔ مارکیٹ میں کاروباری سرگرمیاں جزوی متاثر ہونے کے باوجود منڈی کی رونقیں بحال۔ انجمن آڑتیان کے مطابق منڈی میں 40% مال کی آمد ہوئی ہے۔ مارکیٹ کمیٹی کے مطابق ہڑتال کے باوجود منڈی میں آلو، پیاز، ٹماٹر اور دیگر سبزیوں کے 14 ٹرک منڈی پہنچے۔ عام حالات میں منڈی میں 30 سے 40 ٹرک روزانہ آتے ہیں۔ منڈی میں معمول کی سپلائی متاثر ہونے کے باوجود سبزی اور پھلوں کی کوئی قلت نہیں، قیمتیں مستحکم ہیں۔ دوسری طرف ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کے
साथ पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार रहा। ब्रायलर मुर्गी की कीमत गुज़श्ता रोज 460 रुपए से बढ़कर 465 रुपए की हो गई। मुर्गी में मजमूई तौर पर 2 रोज के दौरान 50 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि अंडे 15 रुपए फी दर्जन महंगे हुए। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोधियाना, रोही भावल। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन एक्साइज की तारीख साथ रिकवरी ने सबको चौंका दिया। यकम से 8 दिसंबर सिर्फ एक हफ्ता की वसूलियों का हुजम अरबों रुपए से तजावुज कर गया। पंजाब भर में एक्साइज की मजमूई रिकवरी 1 अरब 19 करोड़ 13 लाख रवां साल का बड़ा रिकॉर्ड टूट गया। रिकवरी के लिहाज से जनूबी पंजाब के कौन कौन से अजला नुमाया रहे, जानते हैं रहीम यार खान से ब्यूरो चीफ आसिम सद्दीक की इस रिपोर्ट में। यकम से 8 दिसंबर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन। बगैर नंबर प्लेट गाड़ियां और टोकन टैक्स की अदम अदायगी पर गाड़ियां अगले ही लम्हे कानून की गिरफ्त में आ गईं। पूरे पंजाब में एक्साइज एंड टैक्सेशन की तारीख साज रिकवरी एक हफ्ते में 1 अरब 19 करोड़ रुपए की वसूलियां की गई। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल एक हफ्ते में 73 करोड़ रुपए की जायद रिकवरी की गई। रहीम यार खान में रिकवरी का मुवाजना करें तो पिछले साल के तमाम रिकॉर्ड मट्टी में मिल गए। इस बार 329% इजाफे से 2 करोड़ 33 लाख रुपए की रिकवरी हुई। राजनपुर रिकवरी की दौड़ में सबसे आगे रहा, जहां 563% इजाफे से 71 लाख 65 हजार रुपए वसूल किए गए। मुजफ्फरगढ़ में 460% इजाफा 2 करोड़ 38 लाख, जबकि डीजी खान में 444% तारीख साज इजाफा 2 करोड़ 62 लाख की वसूलियां हुई। बकर में 329% का तारीखी इजाफा 76 लाख 55 हजार वसूल। मियां वाली में 181% बेहतरी 51 लाख 23 हजार। सरगोदा में 240% इजाफा 2 करोड़ 18 लाख वसूल हुए। भावलपुर में 311% इजाफे से 2 करोड़ 11 लाख की रिकवरी हुई। भावलपुर में 2 करोड़ 52 लाख रुपए की रिकवरी की गई। लिया में 257% इजाफे से 1 करोड़ 21 लाख। मुल्तान में 178% बेहतरी से 6 करोड़ 60 लाख वसूल। विहाड़ी में 295% इजाफे से 2 करोड़ 17 लाख रुपए वसूलियां हुई। खानेवाल में 364% इजाफे से 1 करोड़ 20 लाख, जबकि लोधरा में 404% इजाफे से 76 लाख 83 हजार की रिकवरी हुई। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और सड़कों पर नज्म ज़ब्त, इस बड़े एक्शन ने वाज़ेह कर दिया कि कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। रिकवरी के ये इदार न सिर्फ तारीखी बल्कि मुस्तकबिल के क्रैकडाउन का इशारा भी देते हैं। कैमरामैन अनवर सुल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। रोड पक्का में आटे की खुद साख्ता खिल्लत, माफिया ब्लैक में फरोख्त करने लगा। 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए की बजाय 1050 से 1060 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरियों का महंगे दामों आटे की फरोख्त के खिलाफ एहतजाज, इंतजामिया से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। रोड पक्का में आटे की किल्लत ने शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह मुतासिर कर दी। जखीरा अंदोजी के बायस सरकारी नर्ख और मार्केट कीमत में जमीन आसमान का फर्क आ गया। 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए की बजाय 1050 से 1060 रुपए में फरोख्त होने लगा। बड़ी तादाद में शहरी मुनासिब कीमत पर आटे की तलाश में खवार होने लगे। शहरियों का कहना था कि आटा महंगा होने से किचन चलाना मुश्किल हो गया है। दुकानदार मनमाने रेट पर आटा फरोख्त कर रहे हैं। ज़िला इंतजामिया की खामोशी से गैर कानूनी रेट बढ़ाने वालों के हौसले बुलंद हो गए हैं। आटा से महंगा आटा 1700-1800 रुपए की 15 किलो की थैली पहले तो मिलता नहीं, अगर मिलता तो महंगा लेने मिल काले को लेने तो मेरे वाले भी नहीं देंगे ना। तो गाल है कि गरीब बंदे आटा है क्या ना सारे को, बस आटा मिल ही नहीं दिया हमारे को। कहीं भी जहाँ भी जाते हैं 1600-1700 रुपए कम नहीं देते कट्टा ना। हम भी गरीब आदमी हैं, मजदूरी मिल नहीं रही, मजदूरी मिलती है तो आटा महंगा मिलता है जनाब। बाजार में आटा नायाब होने से तंदूरों पर रोटी की कीमत बढ़ने का खतरा पैदा हो गया। शहरियों ने ज़िला इंतजामिया से मार्केट में आटे की किल्लत दूर करने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम तनवीर बशीर के हमरा आशिक हुसैन कुरैशी, रूही, करोड़ पक्का। डिप्टी कमिश्नर लोधरा जिला के सरकारी हस्पतालों के हालात बेहतर बनाने के लिए कोशिश। रात गए एसए गुलाम मुस्तफा जट के हमरा तहसील हस्पताल दुनियापुर का दौरा। MS डॉक्टर अनवर एजाज ने हस्पताल की तिबी मशीनरी और अद्वियात बारे ब्रीफिंग दी। DC ने मरीजों की अयादत और इलाज की सहूलियत बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने MSTHQ हस्पताल में डॉक्टर अनवर एजाज की कारकर्दगी को सराहा। हस्पताल में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार, कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का आवाम को इलाज मुआवजे की सहूलियत पर खास फोकस है। सरकारी अस्पतालों में किसी किस्म की कोई कोताही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। बुरेवाला में DPO विहाड़ी तसव्वुर इकबाल का रात के मुख्तलिफ थानों का दौरा। थाना सिटी, थाना सदर, थाना गग्गू, थाना शेख फाजिल और पुलिस खिदमत मरकज की इंस्पेक्शन। DPO ने फ्रंट डेस्क, रिकॉर्ड, हवालात, बिल्डिंग और तमाम मुतलका अमूर का जायजा लिया। DPO ने फ्रंट डेस्क पर पेंडिंग दरख्वास्तों और मिनी रिकॉर्ड की तकमील का जायजा लिया। कहा थानों की बिल्डिंग की मेंटेनेंस, जरूरी रिपेयरिंग और सफाई यकीनी बनाई जाए। अचानक दौरों का मकसद पुलिस अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लेना है।
डिप्टी कमिश्नर लोधरा मोहम्मद अशरफ की जेर सदारत PCSR कमेटी का इजलास ADCR सैयद वसीम हसन और ADC फाइनेंस हाफिज मोहम्मद जफर की शिरकत। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अर्बन यूनियन ख्वाजा मोहम्मद साद भी शरीक हुए। कहा सोशियो इकनॉमिक सर्वे में 2,72,198 अफराद को सर्वे मुकम्मल हो गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पंजाब सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री वज़ीर आला का अहम इकदाम है। रजिस्टर्ड अफराद राशन कार्ड समेत दीगर सोशल प्रोटेक्शन के अहल होंगे। सर्वे का मकसद सेहत, रिहाइश और रोजगार में बेहतरी लाना है। इसराइल में गंदम स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। गंदम पंजाब से KP के स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। असिस्टेंट कमिश्नर इसराइल की कामयाब कार्रवाई। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और पैराफोर्स ने कोशिश को नाकाम बना दी। गंदम से लोड 3 डाले और 3 अदर लोडर तहवील में ले लिए। 50 किलोग्राम वजनी 250 बैग्स गंदम बरामद कर लिए। इसराइल में गंदम स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। गंदम पंजाब से KP के स्मगलिंग की कोशिश नाकाम हो गई है। असिस्टेंट कमिश्नर इसराइल की कामयाब कार्रवाई। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और पैराफोर्स ने कोशिश नाकाम बना दी। मुल्तान में फिजाई आलूदगी की शदीद लहर बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक आलूदा रहा। स्मोक के बाद शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। इनके औकात में मुल्तान की फिजा जहरीले धुएं और स्मोक से भरी रही। नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी के इलाके में AQI 854 पॉइंट तक पहुंच गया, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक सतह है। कैंट एरिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स 886, खाद फैक्ट्री के करीब 579, जबकि मेट्रोपॉलिटन में 533 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 पॉइंट की खतरनाक हद तक मौजूद रहा। के औकात में भी फिजाई आलूदगी में वाज़ेह कमी ना आ सकी। कैंट एरिया एक बार फिर सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका रहा, जहाँ AQI 556 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। BZU के करीब 307, खाद फैक्ट्री के पास 259 और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ऑफिस के करीब 233 पॉइंट रिकॉर्ड हुए। मजमूई तौर पर मुल्तान AQI के लिहाज से मुल्क भर के फिजाई आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर रहा। शदीद स्मोक के नतीजे में शहरियों के लिए खुली फिजा में सांस लेना भी मुश्किल बनता जा रहा है। ट्रांसपोर्ट और सनती सरगर्मियों से निकलने वाला जहरीला धुआं आलूदगी में मजीद इजाफे का सबब बन रहा है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। जनूबी पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ जायदाद ऑर्डिनेंस 2025 के तहत कब्जा माफिया के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक। मियांवाली की तहसील पिपला में रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ। 15 केसेस निपटा दिए गए। उधर बुरेवाला में पुलिस और पैराफोर्स की कार्रवाई। शहरी की करोड़ों रुपए मालियती दुकान से कब्जा वागुजार करवा ली। जनूबी पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ जायदाद ऑर्डिनेंस 2025 के तहत कब्जा माफिया के खिलाफ इंतजामिया मुतहरक। असिस्टेंट कमिश्नर मियांवाली जफर इकबाल का कहना था, पंजाब में सबसे पहला रकबा तहसील पीला में कब्जा माफिया से वागजार कराया है। उधर खानेवाल में ज़िलाई इंतजामिया की DRC कमेटी ने कब्जा वागजार करवा कर हकीकी मालकान के हवाले कर दिया। साइल मोहम्मद अरशद का कहना था, 12 साल से हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। बुरेवाला में पुलिस और पैराफोर्स की कार्रवाई। शहरी की करोड़ों रुपए मालियत की दुकान का कब्जा वागजार करवा लिया गया। किरायादार सब्जी मंडी में दुकान पर 2 साल से काबिज था। दूसरी जानब डहरावाला के नवाही गांव 167 मराद की अजाफी बस्ती में जमीन की अलॉटमेंट के मामले पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना था कि जमीन की अलॉटमेंट करवाने वाले हरासा कर रहे हैं। लोधरा में 3 माह का बलाए सैलाब ने तहसील के 28 मवाजियात की सैकड़ों बस्तियां तबाह बर्बाद कर दी थी। किसी का घर ना रहा तो किसी की साल भर की मेहनत पर मबनी तैयार फसलें दरियाबुर्द हो गईं। सैलाब मुतासरा बस्ती मुरादपुर के कई घराने तहाल सर्वे से महरूम। मकीनों का जिला इंतजामिया से लाचार घरानों के सर्वे के लिए हमदर्दाना गौर करने का मुतालबा किया है। लोधरा की सैलाब से मुतासरा बस्ती मुरादपुर के कई घराने ताहाल सर्वे से महरूम। इन्हीं घरानों में से एक घर गुलाम यासीन का भी है, जो अपने 6 बच्चों और बीवी समेत 3 माह से खुले आसमान तले जिंदगी बसर कर रहा है। गुलाम यासीन का कहना है कि सर्वे टीम ने इसके घर तक आने की जहमत नहीं की और वो ताहाल सरकारी इमदाद का मुंतजिर है। जब थोड़ा पानी उतरा है तो हम हर बंदे को कहा है, उधर पानी था कोई भी नहीं गया। मेरा मुकम्मल घर गिर गया। 8 बंदे हैं हम, 6 बच्चे हैं, एक मियाँ बीवी। इस वक्त खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। कोई भी हमारा सहारा नहीं दे रहा, ना कोई हमें मदद दे रहा। हम बहुत परेशान हैं। गुलाम यासीन की तरह अभी भी लोधरा तहसील के दर्जनों घराने और सैकड़ों मकीन सर्वे ना होने का शिकवा करते नजर आते हैं। जरूरत इस अमर की है कि जिले इंतजामिया ऐसे लाचार और लुटे फुटे घरानों के सर्वे के लिए हम दर्दाना गौर करे और इन्हें हुकूमती इमदाद की फरहमी मुमकिन बनाए। कैमरामैन सजाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ, रोही, लोधरा।